السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری امبگ مہا میلے کے دوران سنگم کے کنارے منعقدہ سنت سمیلن میں سادھوؤں نے ہندوستان کو ہندو راشٹر قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو محب وطن مسلمان ہیں انہیں ان کی گھر واپسی کی مہم جاری رکھی جائے گی۔ برہما رشی آشرم کیمپ پر دھرم سنسد کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے منعقدہ سنت سمیلن میں سوامی نریندر آنند سرسوتی نے کہا کہ تمام ہندوؤں کو اپنے ملک کو ہندو راشٹر لکھنا اور بولنا شروع کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے حکومت ملک کو ہندو راشٹر قرار دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ نریندر آنند سرسوتی نے کہا کہ اسلامک جہاد انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اسے کچلنے کے لیے چینی پالیسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مندروں اور مٹھوں کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اسی طرح مدرسوں اور مساجد کو بھی حکومت اپنے کنٹرول میں لے لے۔ مہا منڈلیشور اناپورنا بھارتی نے، جس کا تعلق نرنجنی اکھاڑے سے ہے، کہا کہ جب ہریدوار میں ہندو مذہب کے قائدین دھرم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جب توقیر رضا بریلی میں 20,000 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اویسی کا دھمکی آمیز ویڈیو جاری ہوتا ہے تو کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ وارانسی کے شنکراچاریہ سوامی آنند سوروپ نے کہا کہ ملک کی تقسیم کے وقت صرف 9 کروڑ مسلمان تھے، اب ان کی آبادی 40 کروڑ ہو گئی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سنت سمیلن کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی۔ سوامی سندھو ساگر نے کہا کہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام جیسے مسلمان ہمیں قابل قبول ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج یعنی اتوار کو مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر یاد کرتے ہوئے ہندوتوا کا ایجنڈا چلانے والوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کو گولی مارنے والا ہندوتوادی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ تمام ہندوتوا سمجھتے ہیں کہ گاندھی اب زندہ نہیں ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے۔ راہل نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا، گاندھی جی کو ایک ہندوتوادی نے گولی مار دی تھی۔ تمام ہندوتوادیوں کا خیال ہے کہ گاندھی جی نہیں رہے، جہاں سچ ہے وہاں باپو زندہ ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے آج 30 جنوری کو جاری کردہ کورونا وائرس کے اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 2,34,281 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 893 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہفتے کے مقابلے میں کیسز میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 29 جنوری کو کورونا کے 2,35,532 کیسز درج ہوئے تھے اور 871 مریض فوت ہوئے تھے۔ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ٹاپ 5 ریاستوں سے ہے۔ اس میں کیرالہ میں سب سے زیادہ 50,812 معاملے ہیں۔ اس کے بعد کرناٹک میں 33,337، مہاراشٹر میں 27,971، تمل ناڈو میں 24,418 اور گجرات میں 11,794 معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 893 افراد کی موت ہوئی ہے، جس سے اموات کی کل تعداد 4,94,091 ہو گئی ہے۔ کرناٹک حکومت نے رات کا کرفیو برخاست کرنے اور اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مہاراشٹر، کیرالہ اور گوا سے آنے والے مسافروں کا لازمی RT-PCR ٹیسٹ جاری رکھا جائے گا۔ چیف منسٹر بسوراج بومائی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے بعد صحافیوں کو ایک بریفنگ دیتے ہوئے کرناٹک کے وزیر مال آر.اشوکا نے کہا کہ 31 جنوری سے کوئی رات کا کرفیو نہیں رہے گا۔ اس اجلاس میں ماہرین اور عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ وزیر اسکولی تعلیم VC ناگیش نے کہا کہ تمام اسکول 31 جنوری سے کھل جائیں گے۔ کرناٹک حکومت نے ہوٹلز، بارز اور پبز میں 50% گنجائش کی شرط ختم کر دی۔ اب صرف سنیما گھر کے لیے 50% گنجائش کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس سال کا بجٹ اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر رام ناتھ کووند کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا۔ بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ 31 جنوری سے 11 فروری تک اور دوسرا مرحلہ 14 مارچ سے 8 اپریل تک ہوگا۔ اس دوران پارلیمنٹ ہاؤس میں کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے جاری رہنمائی خطوط پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اجلاس کے پہلے دن 31 جنوری کو صدر جمہوریہ کے خطاب کے بعد اقتصادی سروے یعنی اکنامک سروے 2021-22 دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا، جس میں ملک کی معاشی صورتحال کی تفصیلات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی پالیسیوں اور پروگراموں کی مستقبل کی سمت اشارہ نظر آئے گا۔ پہلے دن راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی۔ دوسرے دن منگل 1 فروری کو صبح 11 بجے وزیر فائنانس نرملا سیتارمن لوک سبھا میں 2022-23 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ پیگاسس جاسوسی کے تعلق سے ایک بین الاقوامی اشاعت میں نئے انکشاف پر کانگریس نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت پورے واقعے میں ملوث ہے۔ اس نے حریفوں کی جاسوسی کرائی، جو غداری کی حرکت ہے۔ پریس کانفرنس سے مشترکہ خطاب میں قائد اپوزیشن راجیہ سبھا ملکارجن کھڑگے اور کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ جاسوسی غداری کی حرکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اسرائیلی سرویلنس اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے غیر قانونی جاسوسی ریکٹ چلایا۔ وزیراعظم نریندر مودی خود اس میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کو یرغمال بنانے اور غداری کے مترادف ہے۔ سرجیوالا نے کہا کہ مودی حکومت نے 2017 میں پیگاسس سافٹ ویئر اور دوسری فوجی ٹیکنالوجی خریدی۔ وزیراعظم کے دورے میں کوئی
$2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मामलात हुई थी। ये इत्तेफाक नहीं है कि मुशीर कौमी सलामती को रिपोर्ट करने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का बजट 2017-18 में 33 करोड़ से बढ़कर 333 करोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने राहुल गांधी, इनके अमले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म देवेगौड़ा, साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, कुमारस्वामी, बीजेपी की साबिक चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल, इनकी बीवी और अमला, मौजूदा आईटी वजीर अश्विनी विष्णु और इनकी बीवी वीएचपी कायद प्रवीण तोगाड़िया और दूसरों की जासूसी कराने पेगासस का इस्तेमाल किया। पेगासस स्पाईवेयर की टारगेट लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई डायरेक्टर और मुमताज मीडिया और इदारों के सहाफ़ी भी शामिल थे। किसानों के खदावर लीडर राकेश टिकैत ने एमएसपी पर कमेटी बनाने के मामले में मोदी हुकूमत की वादा खिलाफी पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए दोबारा आंदोलन शुरू करने का इंतबा दिया है। उन्होंने पूरे मुल्क के किसानों से अपील की कि वो 31 जनवरी को अपने अजला में जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के दफातर के सामने जमा हों और एहतजाज करें। टिकैत के मुताबिक किसान का एहतजाज खत्म करवाते वक्त हुकूमत ने वादा किया था कि वो चंद रोज़ में ही एमएसपी के लिए कमेटी बना देंगी, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से कोई पेशरफ नहीं हुई और ना हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दिया जा रहा है। इसीलिए हमने अपने किसान भाइयों से अपील की है कि वो 31 जनवरी को सरकारी दफातर पर जमा हों और एहतजाज का ऐलान करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम सिर्फ वोट डालने वाले ना बने बल्कि वोट लेने वाले बने। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मिश्राम के अलावा दीगर पसमानदा तबकात के कायदीन की जमातों के साथ जो इत्तेहाद किया है, यह इत्तेहाद दरअसल कमज़ोरों और मजलूमों का इत्तेहाद है। ओवैसी ने कहा कि इस इत्तेहाद के ज़रिए इन लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है जिनकी आवाज़ें दबाई गई। नौजवानों के दिलों में नाइंसाफ़ी के खिलाफ लावा पक रहा है। वो ये चाहते हैं कि इन्हें हुकूक हासिल हों। उत्तर प्रदेश में महंगाई आसमान को छू रही है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें गैर मामूली बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल की कीमतें आम आदमी के हाथ से बाहर हो गई है। हुक्मरान जमात को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के लिए बर्बादी का इंजन बन गई है। अजीम गुलकारा लता मंगेशकर को अब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अब भी आईसीयू में हैं। इनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने ये बात बताई। 92 साल गुलकारा हल्की अलामत के साथ कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाई गई थी और इन्हें 8 जनवरी को जनूबी मुंबई के ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल के आईसीयू में शरीक किया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीक समदानी और इनके डॉक्टर्स की एक टीम इनका इलाज कर रही है। सऊदी हुकूमत ने उम्रे के लिए आने वाले खुशकिस्मत अफराद की सहूलत के लिए एक नया कदम उठाया है, जिसकी मदद से मोतमरीन होटल का कमरा बुक कराने और ट्रांसपोर्ट समेत कई सहूलतें हासिल कर सकते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत हज व उम्रे ने ऐप के जरिए होटल में कमरा बुक कराने और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। क़ब्ल इस ऐप से सिर्फ उम्रा वीज़ा और खाने काबा व मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह की तस्दीक की जा सकती थी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में 110 करोड़ रुपए के मसारिफ से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। जलपल्ली के लिए बस्ती दवाखाना कायम करने का ऐलान किया। पीने के पानी के मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, सदर नशीन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दूसरे मौजूद थे। केटीआ ने कहा कि शहर हैदराबाद के मदाफाती म्यूनसिपलिटी को तरक्की देने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की गई है। जिला रंगारेड्डी के तुगुड़े में इंटीग्रेटेड वेज और नॉन वेज मार्केट कायम की जाएगी। पीने के पानी की फराहमी के लिए 72 करोड़ रुपए के मसारिफ से पाइपलाइन की तामीर की जा रही है। केटीआ ने कहा कि अवामी मसाइल हल करने पर ही इत्मीनान मिलता है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी के कायदीन पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन बिलखुसूस बंडी संजय को हैदराबाद की गलियों में मिलियन मार्च मुनक्किद करने के बजाय दिल्ली में बिलियन मार्च मुनक्किद करने का मशवरा दिया। कुत्तागुड़म में नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के तामीरी कामों का वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के साथ मुशाहिदा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय हैदराबाद में मिलियन मार्च मुनक्किद करने की बातें कर रहे हैं, जबकि इन्हें बिलियन मार्च दिल्ली में करने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा करते हुए इसे पूरा नहीं किया। जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात को काफ़ी अहमियत दी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना के मामलात में बतदरीज कमी को देखते हुए मंगल 1 फरवरी से स्कूलों के साथ तमाम तालीमी इदारों बशमुल खानगी, इमदादी व सरकारी को खोल देने का ऐलान किया है। वजीर तालीम पी सविता इंद्रा रेड्डी ने इस सिलसिले में बयान देते हुए कहा कि 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे जिन्हें 30 जनवरी तक कोरोना की वबा के बाद तातीलात दी गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में कोविड क़वायद पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाएगी। उन्होंने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा के साथ साथ तलबा और सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो इंतहाई चौकस रहें और कोविड क़वायद पर अमल करें।
वज़ीर के हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात के पेश नज़र जनवरी के अवाइल में संक्रांति की तातीलात के साथ मज़ीद चंद दिन तातीलात में इजाफा करते हुए रियासत भर के तमाम तालीमी इदारों को 8 जनवरी से 16 जनवरी तक तातीलात दी थी। बाद कोरोना के केसों में इजाफे को देखते हुए इन तातीलात में 30 जनवरी तक तौसीक की गई थी। ताहम गुज़िश्ता एक हफ्ते में दर्ज कोरोना के मामलात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद महकमा तालीम ने महकमा सेहत के अहदेदारों से मुशावरत करते हुए 1 फरवरी से तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी का फैसला किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कहा कि बाबा कौम गांधी जी ने मुल्क को अमन और हम आहंगी का जो रास्ता दिखाया है, इसी पर चलकर जमहूरियत को बाकी रखा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने गांधी जी को आज इनकी बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांधी जी ने सच्चाई के हथियारों से मुल्क को आज़ादी दिलाई और इनके अदम तशद्दुद ने दुनिया की कई तहरीकों को मुतासिर किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांधी जी ने के बताए हुए इसी रास्ते पर चलकर अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की गई। तेलंगाना गांधी जी के अमन और भाईचारे की तालीमात पर अमल करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बंजारा हिल्स में ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर के काम तेज़ी के साथ जारी है, जो बहुत जल्द मुकम्मिल हो जाएंगे और ये सेंटर 15 फरवरी तक इफ्तिताह के लिए तैयार रहेगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने इंजीनियर एंड चीफ महकमा इमारत व ईश्वरा गणपति रेड्डी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तामीर में पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक़िद किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट व मैकेनिकल कमेटी के साथ भी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर व नोडल ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट NV रमना, डायरेक्टर NIT वरंगल साई अप्पार रेड्डी, HMRL जोएल DOS डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन और D सुनीता रेड्डी डिप्टी कमिश्नर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद ने शिरकत की। कमेटी ने इमारत के लिए दरकार फर्नीचर का मुआयना करते हुए इसे खतियत दी। तेलंगाना हुकूमत ने आज शहर की मूसा और ईसा नदियों पर 15 ब्रिजेस की तामीर के लिए 545 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दे दी है। इन ब्रिजेस की तामीर के जरिए न सिर्फ इन नदियों को खूबसूरत बनाया जा सकेगा, बल्कि इनसे दोनों नदियों के पास हमल व नकल के राब्ते भी बेहतर होंगे। हालांकि मूसा नदी पर कुछ ब्रिजेस पहले से मौजूद है, लेकिन शहर की ज़बरदस्त तरक्की की वजह से मौजूदा ब्रिजेस ट्रैफिक के बहाव के लिए काफ़ी नहीं है। इसी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मूसा नदी पर मज़ीद ब्रिजेस की तामीर की ज़रूरत महसूस की है। आज इन ब्रिजेस की तामीर के लिए 545 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दे दी गई है। शहर की आबादी में मुसलसिल इजाफा, रोड नेटवर्क और ट्रैफिक में इजाफे को पेश नज़र रखते हुए एक तफसीली ट्रैफिक स्टडी की गई थी, ताकि इन मुकामात की निशानदेही की जा सके जहां इजाफी ब्रिजेस तामीर किए जा सकते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।